Hello everyone. So welcome to another video. इस वीडियो में वेरी क्विकली वी विल रिवाइज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कैसे मॉनेटरी पॉलिसी का मैनेज करती है इन द कंट्री. सो हाउ आरबीआई परफॉर्म्स मॉनेटरी मैनेजमेंट in the country. So let us begin. So what is the monetary policy? The monetary policy simply is that Reserve Bank of the country, that is the central bank of country, is using certain monetary instrument, all right, to manage the interest rate, to manage the money supply और टू मैनेज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. और ये सब किसके लिए करता है? विथ अ व्यू टू अचीव specified objective. All right, that specified objective can be employment generation, that specified objectives can be economic growth, exchange rate stability, all right, inflation control. All these things can be certain specified objectives. Right? So it refers to use of monetary instruments under the control of central bank to regulate and manage the interest rate, money supply, and availability of credit with a view to achieve a specified objective. Second, which institution is monetary policy authority in the country? So in India, Reserve Bank of India act as a monetary policy authority. इसका क्या मतलब होता है? It formulates, it implements and monitor the monetary policy in the country. ठीक है. Another important thing is what is the objective of monetary policy? All right. So Reserve Bank of India and the government of India, all right, signed a monetary policy framework agreement in 2016. और उसके बाद से objective of monetary policy has been revised to very specific thing, and that specific thing is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. तो मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का क्या हो गया है? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, दैट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल. और इसको ऑपरेशनलाइज कैसे करते हैं? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच. राइट, फिट फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच. राइट, इसके तहत हम ये करते हैं जहां पे आरबीआई and government of India, like they decide ki what will be the inflation band. Like the flexible inflation band kitna hoga? Who announces it? Government of India in consultation with RBI. So 2016 से 2021 तक, that is 5 years का एक बार में अनाउंस होता है. And after that 2021 से 2026 तक का both of these जो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, दैट इज 4 ± 2%. 4 ± 2%, दैट इज लोअर बैंड इज 2% एंड अपर सीलिंग इज 6%. और ये कौन सा इन्फ्लेशन होता है जो हमें कंट्रोल करना होता है? दैट इज सीपीआई कंबाइंड. राइट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अनाउंस करता है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई दैट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके आरबीआई को जो इन्फ्लेशन है, दैट इज सीपीआई कंबाइंड, ये एक बैंड के अंदर रखना है. द लोअर वैल्यू इज 2% एंड द हायर वैल्यू इज 6%. ठीक है, तो ये इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक टारगेट मिल जाता है कि यू हैव टू कीप इन्फ्लेशन विद इन दिस लिमिट. ऑलराइट, अब अगर आप ऑपरेटिंग प्रोसीजर पूछेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का कैसे होता है, राइट, हाउ इट इज ऑन अ डे टू डे बेसिस, कैसे परफॉर्म होता है, तो यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज हाउ इट इज ऑपरेटेड. नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? So first thing is that is RBI uses quantitative tools as well as qualitative tools to influence short-term liquidity, जिसको transient liquidity भी कहते हैं, and long-term liquidity, जिसको durable liquidity भी कहते हैं in economy में. तो quantitative tools like CRR, SLR, repo rate, reverse repo rate, etc., open market operation, and the qualitative tools. All right, both these tools are used
by the RBI, all right, to manage the short term and the long term, all right. तो entire economy में अगर manage करना होता है, usually quantitative tools. Within a particular sector अगर manage करना होता है, तो it is usually a qualitative tools. ठीक है. सेकेंड, द ऑपरेटिंग टारगेट, ऑलराइट. तो ऑपरेटिंग टारगेट जो मॉनेटरी पॉलिसी आप कर रहे हो उसका क्या है? तो ऑपरेटिंग टारगेट इज वेटेड एवरेज कॉल रेट इज द ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ऑलराइट. तो मॉनेटरी पॉलिसी में जब रेपो रेट इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसमें वन थिंग जो हम टेक इनटू द कंसिडरेशन कि ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट को ऑपरेटिंग टारगेट है. इसका मेन मतलब क्या है? द आरबीआई बैंक्स विल एंडेवर टू अलाइन द WACR to the policy rate by ensuring optimum level of system liquidity. तो if you see, जैसे अगर हम LAF कॉरिडोर देखते हैं, which is here, LAF कॉरिडोर देखते हैं, तो what is there? LAF कॉरिडोर में in between we have रेपो रेट, ऑलराइट, एंड हायर बैंड पे हमारा रहता है MSF. दिस इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो हमारा प्लस रेपो रेट प्लस 0.25% रहता है. एंड एट द लोएस्ट लेवल वी हैव स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. तो रेपो रेट इन बिटवीन, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एट द फ्लोर एंड MSF एट द टॉप. ये हमारा रेपो रेट माइनस 0.25% रहता है. तो यहां पे जब ये कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक विल एंडेवर टू अलाइन द WACR टू द पॉलिसी रेट, और ये कह रहे हैं कि ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट जो इंटर बैंक रेट रहता है इज ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आरबीआई विल इंश्योर सफिशिएंट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी सो दैट, जैसे रेपो रेट अगर हमारा 5% है तो विल ट्राई टू इंश्योर दैट कि जो हमारा WACR है दैट इज क्लोज टू रेपो रेट, दैट इज क्लोज टू रेपो रेट. यही हम कहना चाह रहे हैं कि वी विल इंश्योर दैट WACR इज क्लोज टू रेपो रेट. तो यही यहाँ पे ये मतलब कहना चाह रहा है व्हेन यू आर सेइंग दिस इज द ऑपरेटिंग टारगेट, और नो RBI wants to align WACR to the policy repo rate. जैसे यहाँ पे अगर एक बार आप देख लेंगे, let us say in case of lesser liquidity crunch है इकोनॉमी में, alright, liquidity crunch है इकोनॉमी में, so what will happen is जो इंटर बैंक रेट है वो बढ़ता चला जाएगा, alright. तो that will be means that the WACR will be higher than repo rate. तो वहां उस टाइम पे आरबीआई लिक्विडिटी पुश करेगा इन द इकोनॉमी. सिमिलरली अगर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, व्हेन देयर इज लिक्विडिटी सरप्लस, ऑलराइट, व्हेन देयर इज लिक्विडिटी सरप्लस, देन व्हाट विल हैपन? द WACR विल बी मच लेसर देन द रेपो रेट. तो वहां पे लिक्विडिटी सक आउट करेगा आरबीआई सो दैट इट इज अलाइन टू द रेपो रेट. सो दिस इज हाउ इट इज मैनेज्ड. ठीक है. So the another important thing is the LAF corridor. We just talked about it. And then the main operating tool to manage the short-term or transient liquidity. All right. Short-term liquidity होती है और long-term liquidity होती है. Short-term liquidity को transient liquidity कहते हैं, long-term liquidity को durable liquidity कहते हैं. All right. तो जो RBI का main tool है to manage the short-term transient liquidity, वो क्या है? That is very important. 7-day variable repo rate और variable reverse repo rate है. All right. That is what the idea. वो 7-day का है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्लियर इट वाज 14 डे, बट 2025 में आरबीआई को जो रिवाइज्ड गाइडलाइन आई थी उसके तहत नाउ इट हैज बीन चेंज टू 7-day वेरिएबल रेपो रेट एंड वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट. तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट. तो ये इट इज द मेन ऑपरेटिंग टूल जो अभी यूज करता है टू मैनेज द शॉर्ट टर्म ट्रांजिएंट लिक्विडिटी. ऑलराइट. वैसे व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई यूज करता है अपार्ट फ्रॉम द मेन ऑपरेटिंग टूल? क्या क्या यूज करता है? तो जैसे हमने बोला वेरिएबल रेपो रेट, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, ऑलराइट, ये यूज करता है ओवरनाइट से फोर्टनाइट पे. बट इसका जो मोस्ट मेन ऑपरेटिंग टूल क्या है? वो 7 days वाला है. 7 days वेरिएबल रेपो रेट और वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट. तो दैट इज व्हाट द आइडिया. ये एक यूज करता है. दूसरा
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यूज करता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यूज करता है, एंड फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स यूज करता है टू मैनेज द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम में। एंड अनदर इज इंस्ट्रूमेंट्स टू मैनेज द लॉन्ग टर्म और ड्यूरेबल लिक्विडिटी क्या है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वीआरआर फोर्टनाइट से ज्यादा वाला, ऑलराइट ऑलराइट, फोर्टनाइट टू लेट अस से 1 ईयर तक, फोर्टनाइट से ज्यादा वाला लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेपो रेट और लॉन्ग टर्म वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, देन फॉरेन एक्सचेंज स्वैप ऑप्शंस, एंड देन एक यहाँ पे और होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, open market operation. So these are the instruments which are used to manage the long term or durable liquidity. So this is the entire operating procedure जिससे monetary policy day to day liquidity को या long term liquidity या short term liquidity कैसे manage करते हैं. This is the entire thing which is there. राइट तो दैट इज व्हाट द आइडिया ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जैसे ड्यूरिंग इन्फ्लेशन है तो हमारा टारगेट क्या है कि इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को कम करना है। सो व्हाट विल हैपन, आरबीआई जो है पॉलिसी रेट इंक्रीज कर देगा, बैंक को जो लोन मिल रहा है वो महंगा हो जाएगा, ऑलराइट, एंड जो बैंक आगे लोन दे रहा है वो भी महंगा देगा। सो लोन विल बिकम कॉस्टलियर, देयर विल बी डिक्लाइन इन डिसबर्समेंट ऑफ न्यू लोन्स एंड देयर विल बी डिक्रीज इन मनी सप्लाई, सो इन्फ्लेशन विल कम डाउन। सिमिलरली ड्यूरिंग स्लो डाउन हमारा टारगेट क्या है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, वहां पे आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रिड्यूसेस पॉलिसी रेट, तो पॉलिसी रेट कम कर देता है, बैंक को जो आरबीआई के द्वारा लोन मिलता है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो आगे बैंक लोन कम इंटरेस्ट रेट पे देता है, तो मोर एंड मोर people will be drawing loans from the banks, so there will be more demand and more output production and there will be increase in the money supply. So this is how the RBI tries to manage the inflation or the slowdown, ये ऐसे manage करता है। लाइक एंड वन मोर थिंग कि कैसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो ध्यान रहे उसके लिए अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फॉर्म हो गई है। इट वाज फॉर्म्ड इन 2016 और विच ऑफ द कमिटी विच रिकमेंडेड इज उर्जित पटेल कमिटी है। इट इज अ स्टेटूटरी बॉडी, ऑलराइट। कौन सा आरबीआई एक्ट का कौन सा प्रोविजंस, तो सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपोजिशन की बात करें तो इट कंप्राइजेस ऑफ 6 मेंबर्स, 3 फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट नॉमिनी। जो गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं उसको सर्च कम सिलेक्शन कमिटी होती है जो रिकमेंड करती है। जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई गवर्नर हु इज द चेयरपर्सन एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु इज इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक और मेंबर होता है, एंड द वन आरबीआई ऑफिशियल विच इज नॉमिनेटेड बाय द आरबीआई। सो दीज आर द 6 मेंबर्स। अगर आप टर्म्स की बात करें तो इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये ध्यान रखेगा कि जो भी गवर्नमेंट नॉमिनी है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। मीटिंग की बात करें तो व्हाट इज मेंशन दैट एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 times a year, तो मिनिमम 4 times आपको मीट करना है। बट व्हाट इज नॉर्मल कन्वेंशन, यूजली दे आर मीटिंग एवरी 2 months, ऑलराइट, तो 6 times in a year they are meeting right now. What is the quorum? So at least 4 members needs to be present so that the meeting can start. So quorum क्या है, minimum number of people जो present होने चाहिए, that is 4 members. यहाँ पे जब हम decision making की बात करते हैं तो it is based on voting. It is based on voting, and one thing which is most important is that RBI governor in the monetary policy committee does not enjoy veto power. He only enjoys casting votes, that in case of tie he will have a one more vote, that is what it is enjoy। तो ये casting vote enjoy करता है, ना कि do not have veto power in the monetary policy committee। तो ये चीज एकदम ध्यान रखेंगे। and the another important thing is the decision of MPC is binding on the Reserve Bank of India। so जो भी decision होगा monetary policy committee का वो binding होगा RBI पे, राइट। और मैंडेट क्या है, क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, तो एक काम खाली
सिर्फ करती है, दैट इज टू फिक्स द पॉलिसी रेट, दैट इज द रेपो रेट। पॉलिसी रेट को, रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट कहते हैं। ऑलराइट, टू फिक्स द पॉलिसी रेट और रेपो रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। दिस इज ओनली द फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ऑलराइट, तो जो सीआरआर कितना होगा, एसएलआर कितना होगा, ऑल दोज थिंग्स, ऑलराइट, जो अदर थिंग्स हैं, दे विल बी डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, वो सारी चीजें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी सिंपली एक चीज डिसाइड करती है कि रेपो रेट कितना होगा। तो ये भी बहुत ध्यान में रखिएगा कि इट कैन बी आस्क्ड एज ए क्वेश्चन। ऑलराइट, अनदर इज द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड, जो भी रेजोल्यूशन रहता है, ऑलराइट, जो भी चीजें रहती हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रहती हैं, तो इट इज ऑन 14 डे द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द एमपीसी कमिटी आर पब्लिश। तो आफ्टर 14 डेज वो पब्लिश कर दी जाती हैं। और एमपीसी को हेल्प कौन करता है? रिजर्व बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। ऑलराइट, ये उनके असिस्ट करता है, उनकी जो भी फॉर्मुलेटन है या जो उनका रिसर्च या बैकग्राउंड वर्क है, वो सारा कुछ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट करता है। देन when it will be said that monetary policy committee has failed in its mandate, ठीक है, जब वो मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट नहीं कर पाएंगे, मीनिंग दैट कि वो जो अपना रेपो रेट डिसाइड कर रहे हैं उसकी वजह से जो हमें फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट जो हमारा बैंड है, इन्फ्लेशन उससे या तो ज्यादा है, मैक्सिमम से ज्यादा है, या मिनिमम से कम है। ऑलराइट, सो इफ द इन्फ्लेशन इज आइदर ग्रेटर देन 6%, ऑलराइट, or lesser than 2% for 3 consecutive quarter, that is for continue 9 months। तो अगर ये ऑलराइट, सो 6% एंड 2%, अगर 9 मंथ्स कंटिन्यू 6% से ऊपर है या 9 मंथ कंटिन्यू 2% से नीचे है, इट विल बी कॉल्ड एज फेल्योर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो एक बार जब फेल्योर हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन? then RBI has to set out in a report to the central government। RBI एक सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है। ऑलराइट, यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि फेल्योर किसका हो रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का। रिपोर्ट कौन भेज रहा है? RBI। उस रिपोर्ट में RBI 3 बातों का बताता है सरकार से। फर्स्ट थिंग इज रीजंस ऑफ फेलियर, हमारा फेलियर क्यों हो गया? टू मेंटेन द इन्फ्लेशन विद इन दिस बैंड, एक रीजन बताता है। दूसरा, रेमेडियल एक्शंस, कि हम क्या रेमेडियल एक्शंस करने वाले हैं सो दैट ये जो इन्फ्लेशन है ये बैंड के अंदर आ जाए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड द लास्ट थिंग, जो थर्ड थिंग है, कि एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड बताता है गवर्नमेंट को कि विद इन दैट टाइम पीरियड वी विल बी एबल टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन विद इन दिस इन्फ्लेशन बैंड। तो ये 3 चीज अपनी रिपोर्ट में क्लियरली वो मेंशन करता है। आज तक क्या एमपीसी कभी फेल हुए हैं अपने मैंडेट में? सो आंसर इज यस। सो ओनली वन टाइम दे हैव फेल्ड। कब हुए थे? जब जनवरी एंड सितंबर 2022, बिटवीन दिस पीरियड ऑफ टाइम इट वाज ग्रेटर देन 6%। जो सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन था दैट वाज ग्रेटर देन 6%। ऑलराइट, सो तो एक बार मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज फेल्ड इन इट्स मैंडेट। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव गॉट सर्टेन वैल्यू एडिशन। थैंक यू एवरीवन।